आज हम प्रोसीड करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन फिजिक्स। So we proceed इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लास्ट क्लास में, पिछले क्लास में कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस कर रहे थे, उसे प्रोसीड करेंगे। कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट हमने देखा था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between 2 point charges is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। और ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, F equals to K Q1 Q2 upon R square। This was the formula for finding the force between 2 point charges। So F equals to K Q1 Q2 upon R square। Here Q1 and Q2 are 2 point charges and R is the distance between them। फिर हमने देखा था K is the constant of proportionality। K is constant of electrostatic constant of proportionality। K is the constant of proportionality, constant of proportionality। Called electrostatic force constant। Called electrostatic force constant। ये हमें ध्यान रखना है, फॉर्मूला F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये फोर्स जो लग रहा है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, आइदर इट विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस। इफ द चार्जेस are of same sign, then like charges repel, so electrostatic force will be repulsive, and if the charges are of opposite side, then the force must be attractive। So F equals to K Q1 Q2 by R square, where K is constant of proportionality called electrostatic force constant। थर्ड चीज हमने देखी थी, the value of K। K की वैल्यू होती है 1/4 pi epsilon naught। The value of K is 1/4 pi epsilon naught। फिर हमने देखा था कि इस K की वैल्यू क्या होती है, इस पूरी वैल्यू 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सारी चीजें लर्न होनी चाहिए। K की वैल्यू 1/4 pi epsilon naught और 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। Here epsilon naught is called permittivity of free space। यहां पे एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी क्या होता है, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड, एंड द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज गिवन बाय 8.854 into
10 raised to the power minus 12. And the unit of epsilon naught is per Newton per meter square and coulomb square. So the value of epsilon naught must be remembered 8.854 into 10 raised to the power minus 12, and its unit is per Newton per meter square and coulomb square. Then when we put the value of K in equation number first, when we put the value of K in equation number first, then what we get from first? F equals to, we put the value of K, the value of K is 1 upon 4 pi epsilon naught and Q1, Q2 by R square. When we put the value of K, then we get the result F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1, Q2 by R square. Let us see condition. If Q1 equals to Q2 equals to 1 कूलम, अगर इन दोनों चार्ज की मैग्नीट्यूड 1 कूलम है, चार्ज यूनिट कूलम होती है. If the value of Q1 and Q2 is 1 coulomb and the separation between them, the distance between them is 1 meter. अगर इन दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, then what would be the value of force? तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो F equals to 1 upon 4 pi epsilon naught, इसकी वैल्यू होती है 9 into 10 raised to the power 9. Q1 की वैल्यू 1, Q2 की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 1. So 1 into 1 divided by 1, we get the 1. So the value of F becomes 9 into 10 raised to the power 9, and the unit of force is Newton. The unit of force is Newton. So 9 into 10 raised to the power 9 Newton. This is the condition when the 2-point charges is of unit magnitude. When the 2-point charges are of unit magnitude. Unit magnitude means its value is 1 coulomb and the separation between them, the value of R is 1 meter. Then what we get the value of force? We get the value of force is 9 into 10 raised to the power 9 Newton, because the value of 1 upon 4 pi epsilon naught will remain and its value is 9 into 10 raised to the power 9 Newton. So from this expression, now we define the definition of 1 coulomb charge. Definition of 1 coulomb charge. Definition of 1 coulomb charge. इस एक्सप्रेशन से, इस कंडीशन से हम 1 coulomb चार्ज को डिफाइन करने जा रहे हैं. तो 1 coulomb is that amount of charge. 1 coulomb is that amount of charge. One coulomb is that amount of charge which repels equal and similar charges. Which repels equal and similar charges. Which repels equal and similar charges with a force of 9 into 10 raised to the power 9 Newton. This is the definition of 1 coulomb charge placed at a distance. Placed at a distance 1 meter apart. Placed at a distance 1 meter apart in vacuum. Vacuum means free space. So this is the definition of 1 coulomb of charge.
1 coulomb of charge. 1 coulomb is that amount of charge which repels. हम रिपेल्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये दो चार्जेस सिमिलर चार्जेस हैं, यानी इन दोनों का साइन सेम है, पॉजिटिव है और लाइक चार्जेस हैं, और लाइक चार्जेस में रिपल्सन होता है. दैट्स व्हाई वी आर saying that which repels. So 1 coulomb is that amount of charge which repels equal in magnitude and similar in nature. Both have the positive charge. So this is its nature. Equal and similar charge with a force. We are getting the value of force 9 into 10 to the power 9. Placed at a distance 1 meter apart. We have taken the distance r equals to 1 meter. And the two charges are kept in a vacuum, in a free space. So this is the definition of 1 coulomb charge, which must be remembered. Now we talk about this is the SI unit of force, SI unit of force, SI unit of distance, and SI unit of charge. Now we talk about the CGS unit of the CGS unit, the CGS system of unit. What would be the unit of charge? So in CGS system of unit, CGS system of unit में charge की unit क्या होती है? The unit of charge is electrostatic unit of charge. The unit in a CGS system of unit, the unit of charge is called ESU. This is the unit of charge in CGS system of unit. What would be the unit of charge in CGS system? So in CGS system of unit, the unit of charge is ESU. ESU is the short form called electrostatic unit of charge. This is called electrostatic unit of charge. E means electrostatics, electrostatic unit, ESU, electrostatic unit, electrostatic unit. ESU means electrostatic unit. So in CGS system of unit, the unit of charge is ESU, means electrostatic unit of charge, or stat coulomb, or stat coulomb, stat coulomb. So in CGS system, the unit of charge is stat coulomb or ESU, either ESU or stat coulomb. In CGS system, the unit of charge is ESU or stat coulomb. Now there is relation between coulomb and stat coulomb. So 1 coulomb equals to 3 into 10 raised to the power 9 ESU or stat coulomb. This is the relation between SI system of unit of charge to the CGS system of unit of charge. In SI system, the unit of charge is represented by coulomb, and in CGS system, the unit of charge is either a stat coulomb or ESU, electrostatic unit of charge. Now we talk about in electromagnetic CGS system of unit. In electromagnetic CGS system of unit,
This is the electrostatic CGS unit of charge. Now in electromagnetic CGS system, in electromagnetic CGS system, in electromagnetic CGS system, the unit of charge is AB coulomb. The unit of charge is AB coulomb. In electromagnetic CGS system, the unit of charge is AB coulomb or EMU or EMU, electromagnetic unit of charge. So both are same thing, AB coulomb or EMU, electromagnetic AB coulomb or EMU. EMU means electromagnetic unit of charge. So this is what about the unit of charge in electromagnetic unit, and 1 coulomb equals to 1 by 10 AB coulomb. 1 coulomb is the unit of charge in SI system, and AB coulomb is the unit of charge, electromagnetic unit of charge in CGS system. This is the electromagnetic unit of charge in CGS system, and that was electrostatic unit of charge in CGS system. So this is what about the Coulomb's law. Now the next topic which we discuss, that is Coulomb's law in vector form. Coulomb's law in vector form. So suppose there are 2-point charges placed at point A and B, and the 2-point charges are given by Q1 and Q2. These are the 2-point charges. Q1 and Q2 are 2-point charges which are situated at 2 points A and B, and the distance between them, the distance between these 2 charges is R. The distance between these 2 charges is R. So these 2 charges will exert electrostatic force on each other. Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा. So the force acting on charge Q2 due to the charge Q1 is given by F21 vector. F21 vector means force acting on charge Q2 due to charge Q1. F21 means force on charge Q2. Force on charge Q2 due to charge Q1. Due to charge Q1. F21 means force acting on charge Q2 due to the charge Q1. And Q2 charge will exert force on Q1 in this direction. So force on charge Q1 due to the charge Q2 is given by F12 vector. F12 vector. F12 vector. F12 vector means force on charge Q1 due to charge Q2, and this is the direction of this force. So the direction of these 2 forces are opposite to each other.
So F12 vector F12 means force on charge Q1. Force on charge Q1 due to charge Q2. So meaning of F12 vector means force acting on charge Q1 due to charge Q2, and F21 means force acting on charge Q2 due to the charge Q1. And the direction of this force, is given by unit vector. So this force is acting from Q1 to Q2. The direction of this force is from charge Q1 to Q2. So for force F21, the unit vector is given by R12 cap. R12 cap. Cap means unit vector. Unit vector is represented by cap. So R12 gives the direction of this force. R12 cap F21 फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है, और इस फोर्स की डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ है, तो F12 फोर्स की डायरेक्शन QR21 cap बता रहा है. These are the two unit vectors, R12 cap and R21 cap. These are the two unit vectors which gives the direction of these two forces. So R12 cap means force R12 in the direction of R12 cap is in the direction of F21. R12 cap in the direction of F21 direction, R12 cap, and R21 cap gives the direction of F12 vector. So R12 cap and R21 cap are the unit vectors which gives the direction of these two forces, F12 and F21. Now use the formula Coulomb's law, force acting between these two charges. So F12 vector equals to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon the distance between these two charges is R. So F12 vector is given by 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, and its unit vector is given by R21 cap. जब भी हम वेक्टर लगाएंगे, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, जब भी हम वेक्टर को यूज करेंगे तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर लगाना मस्ट होगा. So F12 is given by 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square and R21 cap. अब एक फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर का. R21 cap is written as a vector divided by its magnitude, means R21 vector upon magnitude of R21. यूनिट वेक्टर को हम इस एक्सप्रेशन में एक्सपेक्ट खोल सकते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है वेक्टर, यहाँ पे साइन लग गया, वेक्टर बन गया, ये वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. R21 का मैग्नीट्यूड मॉड के अंदर लिखा जाता है. तो 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square, and we can write R21 vector upon magnitude of R21. अगर हम इस यूनिट वेक्टर को खोल करके लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसे हम इसी फॉर्म में रहने देंगे, यूनिट वेक्टर को ओपन नहीं करेंगे. ये नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताया. यूनिट वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दिस फॉर्म. So name it first number equation. In the same way, we will find the force F21.
So F21 force is given by 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. अब इस F21 फोर्स के लिए यूनिट वेक्टर क्या है? That is R12 cap. R12 cap. This is second number equation. Now from first, from second, लेकिन ये जो दो यूनिट वेक्टर है R12 cap and R21 cap, they are opposite in direction. इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है. So we can write that R12 cap is equals to minus of R21 cap. माइनस साइन ये बता रहा है कि इन दोनों यूनिट वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है. R12 की डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ है और R21 की डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ है. So they are directly opposite to each other. So from second number equation we can write F21 vector equals to R12 कैप की प्लेस पे हम लिख सकते हैं माइनस का R21 कैप. तो ये माइनस को बाहर लिख लेंगे. -1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 upon R square and R12 cap is written as minus outside R21 cap. So F21 equals to minus as it is, and at the place of 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square R21 cap can be written as, this expression can be written as F12. So F21 vector is equals to minus of F12 vector. इसकी वैल्यू हमने यहां से पुट कर दी F12. तो यहां से कंक्लूड हुआ कि these two forces are equal in magnitude. इक्वल का साइन लग रहा है, मतलब ये दो फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन में एक दूसरे के अपोजिट है. These two forces are equal in magnitude but opposite in direction. So this obey the Newton's third law. Every action there is equal and opposite reaction. F21 equals to minus of F12. Minus sign shows the direction is opposite and equal to shows that they have the equal magnitude. So it obeys Newton's third law of motion. It obeys Newton's third law of motion. न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन को ओबे करता है. And these two forces are also called central forces. These two forces are also called central forces. इन दो फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं. सेंट्रल फोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं. ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है. That's why they are also called central forces. So Coulomb's force obeys the third law of motion and they are also called central forces. So this is the derivation for Coulomb's law in vector form. हाँ बोलो.
वेक्टर फोर्स इसलिए कहते हैं कि ये फोर्स, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे थे, यानी दे आर कमिंग टुवर्ड्स द सेंटर, ये दोनों सेंटर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पे Q1 चार्ज था, यहाँ पे Q2 चार्ज था। अगर हम रेडियस लेकर के सर्कल ड्रॉ करते हैं, अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे के सेंटर की तरफ आ रहे हैं। दोनों कहाँ मीट करेंगे? सेंटर पे मीट करेंगे, क्योंकि ये इधर से आया, ये इधर से आया, दोनों सेंटर पे मीट करेंगे। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेंट्रल फोर्सेस। तो अभी हमने देखा, अब अपन बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी दोनों एक ही चीज है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहो या रिलेटिव परमिटिविटी कहो, बोथ आर सेम। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड और रिलेटिव परमिटिविटी। तो अभी हमने फॉर्मूला देखा फोर्स इन वैक्यूम, फोर्स इन वैक्यूम का फॉर्मूला देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square। अभी हमने देखा this is the expression for force acting between two charges when they are kept in vacuum। अगर दो चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस को हमने वैक्यूम में रख रखा है, वैक्यूम मींस फ्री स्पेस, तो उनके बीच ये फोर्स लगेगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। लेकिन अगर हम इन दो चार्जेस को वैक्यूम में नहीं रख करके किसी मीडियम में रखते हैं, जैसे वाटर हुआ, ऑयल हुआ, किसी दूसरे मीडियम में अगर रखते हैं, तो फोर्स इन मीडियम क्या होगा? फोर्स इन मीडियम 1/4 पाई। अब एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन नॉट की जगह सिर्फ एप्सिलॉन आएगा। एप्सिलॉन नॉट की जगह पे एप्सिलॉन यूज होगा। एप्सिलॉन नॉट सिर्फ वैक्यूम के लिए यूज होता है, फ्री स्पेस के लिए यूज होता है। अगर कोई मीडियम है तो मीडियम के लिए हम यूज करेंगे एप्सिलॉन। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन और बाकी फॉर्मूला वही रहेगा Q1 Q2 by R square, where epsilon is the permittivity of the medium। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है? मीडियम की परमिटिविटी है। अब इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकंड। तो F of vacuum upon F of medium इक्वल्स टू, इसको जब डिवाइड करेंगे तो Q1 Q2 by R स्क्वायर और Q1 Q2 by R स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा और ये डिवाइड होकर क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन अपॉन 1। यहाँ 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया और ये आ गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज द रेशियो of force acting in vacuum to the force acting in medium। So F in vacuum upon F in medium equals to epsilon upon epsilon naught, and this ratio, the ratio epsilon by epsilon naught is called, ये जो रेशियो ऑब्टेन हुआ इसका एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो आया, इसे ही हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इट्स कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, और रिलेटिव परमिटिविटी। ये जो कांस्टेंट रेशियो आया एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो रेशियो आया कांस्टेंट रेशियो,
इसे हम कहते हैं डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, and it is represented by epsilon r और k। एक ही चीज है, या तो k लिखो या तो epsilon r लिखो। इस कांस्टेंट रेशियो को हम या तो k से रिप्रेजेंट करेंगे। k का मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, k का मतलब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एप्सिलॉन r का मतलब रिलेटिव परमिटिविटी, यानी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू k और एप्सिलॉन r। एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट या तो k लिखो या एप्सिलॉन r के इक्वल लिखो। यहां से हम एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू, अगर k लेते हैं तो एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट इनटू k, अगर एप्सिलॉन r लेते हैं तो एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। तो यहाँ पे एप्सिलॉन r क्या है? एप्सिलॉन r जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी है और k क्या है? डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। दोनों का सेंस एक ही है, यानी F इन मीडियम फ्रॉम सेकंड नंबर इक्वेशन से अगर हम देखें तो फोर्स इन मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन था। इस एप्सिलॉन की प्लेस पे या तो एप्सिलॉन नॉट k लिखो, एप्सिलॉन नॉट k बाकी एज इट इज q1 q2 बाय r स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन की प्लेस पे एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r लिखो एंड q1 q2 बाय r स्क्वायर। सबका मीनिंग एक ही है, एप्सिलॉन नॉट इनटू k या एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। तो इस तरह से अपन फाइंड आउट कर लेंगे। अगर मीडियम में आपको फोर्स निकालना है तो फॉर्मूला ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 बाय r स्क्वायर। अब इस k की वैल्यू क्या होगी? k की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। कोई भी अगर मीडियम देता है तो वहां पे k की वैल्यू गिवन होगी। जैसे k की वैल्यू वैक्यूम के लिए क्या होती है? तो k की वैल्यू वैक्यूम के लिए 1 होती है। द वैल्यू ऑफ k फॉर वैक्यूम, वैक्यूम के लिए k की वैल्यू 1 होती है। अगर हम यहाँ पे k की वैल्यू 1 रख दे तो कौन सा फॉर्मूला बन गया? फोर्स इन वैक्यूम का फॉर्मूला बन गया। उसी तरह से एयर के लिए k की वैल्यू एयर के लिए होती है k फॉर एयर 1.0005। ये एयर के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी। वाटर के लिए k की वैल्यू 80 होती है। हालांकि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स में ये k की वैल्यू आपको गिवन होगी। तो दिस इज व्हाट अबाउट डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को k से रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन r से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों का मीनिंग एक ही है। और ये होता क्या है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट? तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी इज द कांस्टेंट रेशियो ऑफ permittivity of the medium to the permittivity of the free space। मीडियम का परमिटिविटी और फ्री स्पेस का परमिटिविटी का जो कांस्टेंट रेशियो होता है उसे ही हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल किसके लिए आता है? अगर बहुत सारे चार्जेस हैं और सारे चार्ज मिलकर के किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, तो उससे कितना टोटल फोर्स लग रहा है उस पर्टिकुलर चार्ज पे, ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करना होता है। तो इसका स्टेटमेंट पहले तो याद रखेंगे, when number of charges are interacting, when number of charges interacting, यानी बहुत सारे चार्ज एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे को के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। When number of charges interacting, then total force on a given charge is the vector sum of all the charges. Then total force on a given charge is the vector sum of all the forces exerted on it due to all other charges. Due to all other charges. किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स होगा, द टोटल फोर्स ऑन ए गिवन चार्ज, वो किसके इक्वल होगा? टोटल फोर्स जो होगा किसी भी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्ज के कारण जो टोटल फोर्स एक्ट करेगा वो इक्वल होगा वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्स का वेक्टर सम होगा जो कि किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर फोर्स लगा रहे होंगे। तो इसे डिराइव करेंगे इस रिजल्ट को। तो सबसे पहले एक प्लेन लेंगे, XY प्लेन, यहां पे हमने सपोज किया देयर आर वेरियस चार्जेस, ये सपोज कीजिए Q2 चार्ज है और यहाँ पे Q3 चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है जो कि Q1 है। ये Q1 चार्ज है और Q1 चार्ज P पॉइंट पे सिचुएटेड है एंड देयर आर टू अदर चार्जेस Q2 Q3। हमने तीन चार्ज लिया है Q1 Q2 Q3। इस प्लेन में और भी बहुत सारे चार्ज हो सकते हैं Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q8। अब इन सबको ज्वाइन कर दीजिए, Q2 से Q1 को ज्वाइन कर दिया और Q1 से हमने Q3 को ज्वाइन कर दिया। ये P पॉइंट था, P पॉइंट पे Q1 चार्ज है, इस पॉइंट पे Q2 चार्ज है, इस पॉइंट पे Q3 चार्ज है। अब इनकी पोजीशंस को रिप्रेजेंट किया जाएगा। इस Q1 चार्ज की पोजीशन ओरिजिन से R1 वेक्टर है, Q2 चार्ज की पोजीशन R2 वेक्टर है और Q3 चार्ज की पोजीशन R3 वेक्टर है। दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर्स, R3 वेक्टर, R2 वेक्टर एंड दैट इज R1 वेक्टर। अब इसे नेम दे देते हैं O A P और इसे नेम दे देते हैं B। अब इस ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक तो OAP और एक OBP। 11th क्लास में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपने पढ़ा था, वहां से हम AP पोजीशन वेक्टर को फाइंड आउट करेंगे। AP पोजीशन वेक्टर को हम फाइंड आउट करेंगे। तो फ्रॉम ट्रायंगल OAP ट्रायंगल में OA वेक्टर और AP वेक्टर, इसकी डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन सेम है और OP वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट है। So we can write
from triangle law of addition. OA vector plus AP vector equals to OP vector. OA vector plus AP vector equals to OP vector. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने लिख दिया OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इक्वल्स टू OP वेक्टर। अब हमें फाइंड आउट करना है AP वेक्टर। तो AP वेक्टर कैन बी रिटन एज OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। अब OP का पोजीशन कितना है, R1 है, और OA का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है। तो AP वेक्टर किसके इक्वल हो गया, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो इस AP के पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर देंगे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इसी तरह से इन ट्रायंगल OBP में, इन ट्रायंगल OBP यहां भी ट्रायंगल ऑफ एडिशन को यूज करेंगे। तो OB वेक्टर और BP वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन सेम है और OP का लाइन ऑफ एक्शन इनके अपोजिट है। तो वी कैन राइट OB वेक्टर प्लस BP वेक्टर इक्वल्स टू OP वेक्टर। अब हमें फाइंड आउट करनी है BP वेक्टर। तो BP वेक्टर इज रिटन एज OP वेक्टर माइनस OB वेक्टर, और OP की वैल्यू R1 और OB की वैल्यू R3। तो ये हो गया आपका PB वेक्टर इक्वल्स टू R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर। तो सबसे पहले हमने सारे पोजीशन वेक्टर्स को फाइंड आउट कर लिए। अब इस Q1 चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है। Q1 चार्ज के ऊपर बहुत सारे चार्ज फोर्स लगा रहे हैं। Q1 के ऊपर Q2 चार्ज फोर्स लगा रहा है, Q1 के ऊपर Q3 लगा रहा है। इसी तरह से कहीं इस प्लेन में Q4 होगा, Q4 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, Q5 भी लगा रहा होगा। इस तरह से Qn भी कोई चार्ज होगा जो Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा होगा। अब यहाँ पे हमने तीन फोर्स लिए, तीन चार्जेस लिए हैं। तो Q2 इस Q1 के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ, पॉजिटिव है। और Q2 जो Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा उसे हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, F12 वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। उसी तरह से Q3 चार्ज Q1 के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा होगा और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे F13 वेक्टर, F13 वेक्टर। और इन दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में लाया करेगा, F वेक्टर। और इसको इस तरह से ज्वाइन करते हैं तो इस तरह से ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो जाता है। अब हम सारे फोर्स को कूलम्ब्स लॉ से लिखेंगे। तो F12 की वैल्यू क्या होगी और F13 की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने प्रीवियसली देखा था वेक्टर्स, कूलम्ब्स लॉ में वेक्टर फॉर्म। तो F12 वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर और R12 कैट। R12 क्या है, Q1 से Q2 तक की डिस्टेंस है, और R12 कैट इसका यूनिट वेक्टर है, डायरेक्शन को बता रहा है। वेक्टर साइन यूज हुआ है तो यूनिट वेक्टर को हमें यूज करना पड़ेगा। अब इस यूनिट वेक्टर को रिमूव करने के लिए मैंने बताया था, इसे लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर। R12 कैट यूनिट वेक्टर को खोलेंगे तो वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को मॉड भी लगा के लिख सकते हैं, बिना मॉड का भी लिख सकते हैं। तो ये बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q2
and r12 vector upon r12 का स्क्वायर एंड r12, तो r12 क्यूब, r12 का क्यूब। अब यहां पे पोजीशन वेक्टर जो हमारा था r12 हमने फाइंड आउट किया था, r12 किसके इक्वल था, r1 माइनस r2 के इक्वल था। तो अब इसका पोजीशन वेक्टर को अगर हम लिख दें तो f12 वेक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2। r12 वेक्टर की प्लेस पे हम लिख सकते हैं r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर एंड r12 मैग्नीट्यूड का क्यूब। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम मॉड में लिखते हैं r1 माइनस r2 का होल क्यूब। तो ये फोर्स f12 फोर्स आ गया। इसी तरह से Q3 चार्ज Q1 के जो ऊपर फोर्स लगा रहा है वो फोर्स कितना है, F13 है। इसी वे में हम F13 भी लिख सकते हैं। F13 को हम लिखेंगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q1 Q3 आ जाएगा, यहाँ पे R12 की प्लेस पे R13 आ जाएगा, R13 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा R13 कैप। अब वापस इस यूनिट वेक्टर को खोल देते हैं वेक्टर में, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर को लिख दिया वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसे फिर लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, और ये R13 वेक्टर एज इट इज, और इसको R13 का स्क्वायर और R13, ये बन गया R13 का क्यूब। अब इसकी पोजीशन को लिख देते हैं, तो F13 वेक्टर इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड Q1 Q3 अपॉन Q1 Q3, और R13 वेक्टर को लिख दो R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर का फॉर्म में लिख दिया, और R13 का क्यूब यानी R1 वेक्टर माइनस R3 वेक्टर का होल क्यूब। इसी तरह से F14 निकाल सकते हैं, F15 फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरह से डैश डैश दे करके F1n यानी फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू द चार्ज Qn। इसे हम कैसे लिखेंगे, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर एंड R1n कैप। फिर इस कैप को रिमूव कीजिए, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn और अपॉन R1n का स्क्वायर, और इस कैप को खोलेंगे तो R1n वेक्टर अपॉन R1n। अब इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn और R1n वेक्टर, और ये R1n का स्क्वायर और R1n, ये बन गया R1n का क्यूब। और फिर इसकी पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, then it becomes 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Qn। R1n vector is written as R1 vector minus Rn vector, and this is written as R1 vector minus Rn vector का क्यूब। तो इस तरह से ये हमने फोर्स फाइंड आउट कर लिया, F12, F13, F14, F15, F1n। अब इनका जो टोटल होगा वो इनके सम के इक्वल होगा, तो इन सब का हम वेक्टर सम कर देंगे। तो वेक्टर सम करने के लिए हम इसे लिख देंगे F1, ये F1 फोर्स यानी Q1 चार्ज के ऊपर लगने वाला टोटल फोर्स, दिस इज इक्वल्स टू F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डैश डैश
F1 n वेक्टर। अब इनकी वैल्यू लिख दो। तो F1 2 की वैल्यू क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का स्क्वायर एंड R12 कैप। ये वाली वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू ले रहे हैं। उसी तरह से F13 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का स्क्वायर एंड R13 कैप प्लस डैश डैश। अब F1n की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n का स्क्वायर एंड R1n कैप। अब इन सब के अंदर क्या कॉमन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर हम कॉमन ले लें और Q1 भी सबके अंदर कॉमन है, तो ये बन जाएगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसे अब समेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो सिग्मा I इक्वल्स टू ये कहां से स्टार्ट हो रहा है? तो I2 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो R12 है। तो I इक्वल्स टू 2 से लेकर के और लास्ट वैल्यू I की कहां तक जा रही है? I की वैल्यू n तक जा रही है। तो I इक्वल्स टू 2 से लेकर के I इक्वल्स टू n तक, और इसे लिख देंगे QI अपॉन R1I का स्क्वायर और R1I कैप। अगर I की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन आ जाएगा। I की वैल्यू 3 डालेंगे तो ये थर्ड एक्सप्रेशन आ जाएगा। और इस तरह से I की वैल्यू n डालेंगे तो nth एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। So this is what about the total force acting on charge Q1 due to all other charges Q2, Q3, Q4 dash 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 Q1। तो ये हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसका डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है, इसको आप कर लेंगे कंप्लीट। कल नेक्स्ट क्लास से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे।